اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبر نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہی مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو چٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میرے قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی
और इससे गला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये इसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक वो जात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन के नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी बनीनो इंसानों में से, या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है। हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है और ये चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि उनसे गुजरता हुआ वो खजूर की सूखी शाख की मानद रह जाता है। न सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इनके लिए यह भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया और फिर इनके लिए वैसे ही कश्तियां पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये न बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही है जो उन्हें पार लगाती और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमता होने का मौका देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो भी आयात आती हैं ये उसकी तरफ इल्तफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं कि हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खूब खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि ये कयामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक उन्हें ऐन उस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनियावी मामलात में जकड़ रहे होंगे और उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे, न अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूंका जाएगा और यकायक ये अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठाकर खड़ा कर दिया? ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और सबके सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे अमल तुम करते रहे थे। आज जन्नती लोग मजे करने में मशगूल हैं। वो और उनकी बीवियां घने सायों में हैं, मुस्नदों पर तकिया लगाए हुए। हर किस्म की लजीज चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करें उनके लिए हाजिर है। रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा गया है। और ए मुजरिमों, आज तुम छटकर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक ग्रोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? यह वही जहन्नम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे हो उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं। इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें
फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से उन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह ही पर इस तरह मसख करके रख दें कि ये न आगे चल सकें न पीछे पलट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख को हम उलट ही देते हैं। क्या ये हालात देखकर उन्हें अकल नहीं आती? हमने उस नबी को शेर नहीं सिखाया और न शायरी उसको ज़ेब ही देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने उन्हें अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह उनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं और उनके अंदर उनके लिए तरह तरह के फवायद और मशरूबात हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाएगी। उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए हाजरबाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करें। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी हों? उससे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था, और वो तख्लीक का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपनी चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस पर कादर नहीं कि इन चीजों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे के हो जा और वो हो जाती है। पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इक्तिदार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो।